Hello friends, let us see some more examples in the passive voice. Till yesterday we have converted many sentences, and in the last video we have seen how sentences starting with helping verbs, that is sentences of question, interrogative sentences, at the beginning of which there is a helping verb, and we were trying to convert these sentences from active voice into passive voice, and we have seen in almost 6 tenses there will be helping verbs, and in 2 tenses there were mostly no helping verbs. We have learned how to convert these sentences into passive voice. Now today we are going to see how we can convert sentences into passive voice, sentences of words which are of WH type, that means interrogative words, that means WH words which help us to ask questions. So we are going to see such sentences which are starting with WH words. See, 1, 2, 3. 3 words are here, 1 where is here and 1 when is here. Now let us see the first 5 sentences. If suppose there is a sentence in front of us, what do you eat? This is a question, and this question is a complete question. That means it is demanding a complete answer from us. Therefore, our duty is not to give an answer about what we are eating. That please don't say I am eating food, or I am taking breakfast, or I am eating my supper, डिनर, इस प्रकार की बातें नहीं करना है. What do you eat is a sentence in the active voice. अब इसको हमें passive voice में change करना है. Suppose we want to change the sentence. Now here the question is, what do you eat? There is no object inside the sentence. So normally what we do, we take the object and bring it to the place of subject, and then we start making sentences. But in questions, if it is जैसे कि आपने कल देखा, यदि सेंटेंस इन सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हमारा पैसिव वॉइस का आंसर भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए. उसी प्रकार यदि सेंटेंस WH से स्टार्ट है तो हमारा आंसर भी WH से ही स्टार्ट होना चाहिए. और now please see, what do you eat? Here the object is not at all known, it is unknown. Therefore we are going to write and repeat what here. So this what will function as object. The object which is not known here, it is the same that we are going to use in the form of what. So we will write what as again repeated, and it will be again considered as the new subject. What is. Now let us see why this is here. अब आप देखें कि यहाँ पर वाट भी है, डू भी है. इस वाट को वाट कर दिया हमने. अब आप देखें डू यू ईट, ये डू और ईट ये दोनों फर्स्ट फॉर्म है, तो टेंस हमारा है प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल में कल आपने देखा था वी कैन यूज इज, एम, आर, एनी वन ऑफ दम अकॉर्डिंग टू what is needed here. So what is mostly singular, and therefore we are writing is. After what there should be helping verb. That is the order of a sentence in which there is a WH word. So WH family के जितने भी words आते हैं उन words को आप repeat कर सकते हैं, और उसके बाद जो tense है उस tense के हिसाब से new helping verb लाइए. new verb और ये दोनों एक साथ लिखाएगा. What is थर्ड फॉर्म यूज़ करें, बाई यूज़ करें, और यहाँ पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के क्वेश्चन मार्क लगा के लिखें. नाउ लेट अस सी द सेकंड सेंटेंस. व्हाट डज ही डू? हियर व्हाट इज रिपीटेड अगेन. डस मीन्स प्रेजेंट सिंपल. द हेल्पिंग वर्ब्स अवेलेबल आर इज, एम, आर, एंड देयरफॉर मोस्टली व्हाट सिंगुलर. देयरफॉर हम इसको यहाँ पे ला के लिख सकते हैं. डू का डन बाय हिम. लेट अस सी व्हाट डिड दे से. What did they say? Here what is equal to what? Then they did. Did and say. Did is in the past tense and say is in the present tense. So but here tense did के अनुसार ही आपको निकालना पड़ेगा.
डिड पास्ट टेंस में है, देखिए पास्ट सिंबल है तो डिड को हटाएंगे हम और उसकी जगह वाज या वेयर में से यहाँ लिखेंगे, वाट सिंगुलर होने से वाज सेड बाय देम। इस प्रकार हम सेंटेंस को बना सकते हैं। नाउ लेट अस सी, देयर इज ए चेंज वेयर। नाउ वी हैव यूज्ड वेयर डिड यू कीप द कीज। अगेन लेट अस सी, वेयर का वेयर है ये यकीनन आप अच्छा समझ के रखना कि जो WH फैमिली के जो भी वर्ड्स आएंगे उसको हम वापस रिपीट करेंगे। डिड एंड कीप, डिड पास्ट फॉर्म है और कीप प्रेजेंट फॉर्म है, बट टेंस पास्ट सिंबल है। सो हम इसके हिसाब से चलेंगे, इसको रिमूव करेंगे और उसकी जगह यहाँ पर वाज या वर में से एक लिखेंगे। अब हम यहाँ पर वर क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर वेयर से नहीं इसका तालमेल है इससे। ये है न्यू सब्जेक्ट, वर वेयर द कीज kept by you। यह आपको अच्छे से समझना है इस प्रकार के जो यूसेजेस है। नाउ लेट अस सी नंबर 5, व्हेन। यहाँ पर व्हेन WH फैमिली का शब्द दूसरा फिर 5वां नंबर पे चेंज हो गया है, व्हेन आ गया। व्हेन को व्हेन लिखिए। हैव यू डन दैट होमवर्क, हैव और डन दिस आर हैव प्लस थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पर आप देखिए हैज बीन लिख सकते हैं, हैव बीन लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पर देखिए होमवर्क ये सिंगुलर काम है, इस कारण से हैज़। अब यहाँ पे आप देखिए हैज़ और बीन एक साथ है, लेकिन यहाँ पर आपको न्यू सब्जेक्ट से पहले हैज़ को लिखना पड़ेगा और इस सब्जेक्ट के बाद में बीन को लिखना पड़ेगा। और ये थर्ड फॉर्म को थर्ड फॉर्म बाय यू क्वेश्चन मार्क लगा करके लिखिए। मैं समझ रहा हूँ कि शायद आपको ये जो अभी तक जो भी समझाया है समझ में आया होगा। नाउ लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स। तो दोस्तों हम आगे जारी रखते हैं। नाउ अभी आप देखिए छठा सेंटेंस देखिए, हाउ। हियर देखिए हाउ शब्द आ गया है, ये प्रश्न पूछने के लिए आता है, ये क्वेश्चन वर्ड कहलाता है। यहाँ इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है। इस प्रकार के सेंटेंसेस जिसमें WH फैमिली के शब्द आते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब भी साथ में आएंगे, हमें इसके हिसाब से चलना है। यहाँ पर व्हेन आया था, फिर हमने हाउ देखा। हाउ विल यू अरेंज द पार्टी। अब आप देखिए हाउ का आप हाउ लिख दीजिए। अब विल यू अरेंज द पार्टी का टेंस निकालिए। विल और ये विल हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब फ्यूचर सिंबल टेंस को बनाता है। जैसे आपको मैंने समझाया था, ट्रिक के हिसाब से भी आप चलेंगे तो विल आया तो आपको या तो शैल बी या विल बी लिखना है। आप ट्रिक को वैसा याद रखिए, वो आपको हमेशा काम आएगा। अब यहाँ पे हाउ का हाउ लिख दीजिए और उसके बाद फिर आप देखिए यहाँ पर हम द पार्टी है यहाँ का ऑब्जेक्ट, इस पार्टी को यहाँ पे हम सब्जेक्ट बना रहे हैं तो उससे पहले शायद या विल लिखिए तो विल यहाँ आएगा। हाउ विल द पार्टी। बी लिखिए, ये जो बी है इसको सब्जेक्ट के बाद लिखिए, विल को पहले लिखिए, बीच में सब्जेक्ट लिखिए। अरेंज्ड, अरेंज का अरेंज्ड थर्ड फॉर्म और ये बाय यू, इस प्रकार सेंटेंस चेंज हो जाएगा। 7 नंबर सेंटेंस में देखिए, अब हमने हाउ को हटाया, विच लगाया, विच से क्वेश्चन पूछा, विच आंसर वाज ही राइटिंग, वह कौन सा उत्तर लिख रहा था। इसके लिए हम देखें, नाउ लेट अस सी, विच इज रिपीटेड अगेन विच। ओके, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब हियर बट प्लीज कम little more forward and you can find a helping verb here, that is was, and this is the part of which answer is the part of the initial word. These two are the same in one unit, therefore they will go together, which cannot be written separately. Answer also will go with which. So because which is asking about something, that is answer according to the sentence which number answer he is going to write. So which answer. Up now let us see, was he writing. Now here the helping verb was, that means it is past, ing, past continuous, देखिए past continuous, and because of that either was being or were being. Now answer was being written, answer singular, therefore was being written by him, question mark. Now let us see here the sentence why. Why is she scolding the child. Scolding यानी डांटना, फटकारना, डांट लगाना. Why is she scolding the
child. Let us see why. Why का why लिखिए. Is helping verb. Now sentence ट्रिक के हिसाब से देखेंगे. is present tense में है तो हमारे पास है is, am, are. रिपीट कर सकते हैं. बट being यहाँ पर ing होने से because of ing verb here we have to add being, being. So why, and according to the new subject is, तो is पहले, the child, then being. being सब्जेक्ट के बाद scold का scolded by her. इस प्रकार आप सेंटेंसेस को चेंज करें ध्यान से. अभी तक हम जो देख रहे थे, अभी हमने वाट का वाट लिखा, विच का विच लिखा, वेयर का वेयर लिखा, वेन का वेन लिखा, हाउ का हाउ लिखा, वाई का वाई लिखा. बट यहाँ पर आकर के आप इसको ध्यान से देखें, इसमें आप मिस्टेक ना करें, बिकॉज यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन है, एक छोटा सा चेंज है. हु सेंटेंस, हु से जो क्वेश्चन आते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यदि आपसे कोई पूछे हु ब्रोक द ग्लास, कांच किसने फोड़ा है, यदि ये पूछे तो जरूरी नहीं है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब आए. हेल्पिंग वर्ब आने की गुंजाइश है तो आएंगे, नहीं है तो नहीं आएंगे. अब नीचे के सेंटेंस देखिए, हु हैज़ आंसर्ड द क्वेश्चन. यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता है, इस कारण से हैज़ को लिख दिया है. यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं है, इस कारण से हम यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब ने प्रवेश नहीं लिया. और मोस्ट प्रोबेबली ये हु से जो सेंटेंसेस होते हैं और यदि वर्ब हमारा सेकंड फॉर्म है तो वहाँ पर हमें डिड की या डू की आवश्यकता नहीं होती है. डू या डस या डिड इसमें हु के साथ प्रवेश ना कर पाएगा, और हैज़ और हैव और शैल और विल इस प्रकार के आ सकेंगे. नाउ लेट अस सी हु ब्रोक द ग्लास. नाउ लेट अस वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड टू हु. हु को कन्वर्ट करेंगे हुम में, WHOM. और जो बाई हम जो लास्ट में लगाते थे उसको हम पहले लिख करके इन दोनों की जोड़ बिठाएंगे और बाय हुम बोलेंगे इसको, यानी इसको लेट अस कॉल इट बाय हुम. हु विल बी रिप्लेस्ड बाय हुम. याद रखिए, प्लीज लिसन टू मी एंड लर्न इट थॉरली, लर्न इट बाय हार्ट. हु इज इक्वल टू बाय हुम. हु इन द एक्टिव वॉइस एंड बाय हुम इन द पैसिव वॉइस. नाउ लेट अस सी ब्रोक. ब्रोक द ग्लास. Broke is the verb. What is the tense? It is the second form. Therefore, the tense is past simple. Simple past means we can take either was or were. Now let us see glass. Glass is the subject, so it is singular. So was. By whom? And again let us see after the interrogative word यानी क्वेश्चन पूछने वाले शब्द के बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखना है. एक हेल्पिंग वर्ब को कम से कम लिखना ही पड़ेगा. By whom was the glass broken? आफ्टर ब्रोकन के बाद भी by whom ना लिखे, ये गलती ना करें, क्योंकि by whom ये जो बाद में लगता था वो यहाँ पर पहले ही लिख चुका है. और who को कन्वर्ट करे whom में, m लगा करके who को whom बना दे. अब देखिए who has answered the question. यहाँ पर who, यहाँ पर has answered, ये थर्ड फॉर्म है तो has, ये आपका ट्रिक है. has वाला सेंटेंस आया तो आप उसको कर सकते हैं हैज़ बीन या हैव बीन. ये प्रेजेंट परफेक्ट का है. ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में या तो हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ हमको करना पड़ेगा. सो हु को कन्वर्ट करा बाय हुम में, और बाय हुम के बाद हैज़ को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, बीन को बाद में लिखें और थर्ड फॉर्म को लिखे, क्वेश्चन मार्क लगाए. और फिर से मैं बोल रहा हूँ, आखिरी में ब्रोकन बाय हुम, ब्रोकन आंसर्ड बाय हुम का यूज़ ना करें, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी डन हियर, इसलिए आप वो गलती ना करें. इस प्रकार हम हमारे जो WH फैमिली के जो मोस्ट सेंटेंसेस जो हमारे सामने आते हैं उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं. थैंक यू.